These remedies made from flowers can actually help us balance emotions, and the more balanced we are, better corporate life we can have, better productivity we can have. Hello everyone. So welcome back to season 3 of Bubble Chat, and today we are here with a very interesting topic. I'll introduce my distinguished guests today. We have with us Mr. Nikunj Walia ji, and with us we have Deepika Singh. What is Bach flower therapy actually? Yeah. So when we talk about this word Bach flower, Bach is the name of the person who discovered these remedies, Dr. Edward Bach, and he discovered these remedies some 100 years back, 1930s, in UK. And each and every remedy is made of flowers and a specific remedy for a specific emotion. And in this, we read that there are 38 different emotions which we all experience from the time of our birth till the time we are going to die. And the problem is that we don't understand. We are in that roller coaster of emotions, but we are not able to label them, understand them. But when we talk about Bach flower, it's about balancing those emotions by using these different remedies. And when it comes to corporate stress, anxiety, it's all about emotions. We can relate to it, telling that deadlines and the pressure that we create on ourselves, or the high expectations from the company. So these are all stressful situations and multiple other things, and how with Bach flower remedies we can deal with each and every emotion and can live in a balanced way. These remedies made from flowers can actually help us balance emotions, and the more balanced we are, better corporate life we can have, better productivity we can have. Now what is emotion? जैसे आप पूछ रहे हैं इमोशन क्या है? अगर हमारी अपनी एनर्जी, बॉडी में एक एनर्जी है, ये हम सब मानते हैं. Whatever the emotions we are getting, we के नेगेटिव इमोशन, अभी नेगेटिव इमोशन आया कुछ तो क्या होगा? कभी कभी हमको गुस्सा आता है. कितने लोगों को गुस्सा आता है? आप सबको पता आता है ना सबको. Now the moment you are in the feeling of anger is in the feeling. Now what is happening? आपकी एक एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी है, एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट हुई. एनर्जी शिफ्ट हुई तो कहाँ गया? ऊपर की तरफ. Now we are in the problem, we are in the negative emotion because of आउटसाइड वर्ड. डॉक्टर बैक ने कहा कि कुछ भी हो रहा है, हाउ यू हैव टू बैलेंस. अभी एनर्जी को बैलेंस करना है. व्हाट बैक फ्लावर इज डूइंग, व्हेन यू टेक दीज रेमेडीज यू बैलेंस योर एनर्जी वेरी फास्ट बिकॉज द रेमेडी गोज इन योर ब्लड सेल्स. What are the emotional triggers at work without judging themselves? तो ऐसे कौन से वर्क फ्रंट में ट्रिगर्स रहते हैं जिसको हम बैलेंस कर सकते हैं Bach flower से? देखो, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड व्हाट इज द मेन इमोशन इज डेडलाइन. तो सबसे ज़्यादा क्या ट्रिगर हो रहा है? डेडलाइन. और उस डेडलाइन की वजह से आपको क्या है, एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एंड वी डू मिस्टेक्स. सो डेडलाइन को टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, और एक्टिविटी की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है. तो आई थिंक डेडलाइन और स्ट्रेस को हम हैंडल कर पाएंगे. क्या Bach flower थेरेपी सिर्फ कोई बीमार है तभी लेनी चाहिए या कोई भी ले सकता है? कितने लोगों का होगा कि उनको जीवन में कुछ करना है, डायरेक्शंस क्लियर नहीं है, बॉस ने कुछ कहा, डायरेक्शंस ही क्लियर नहीं है कि कैसे करना है, नींद नहीं आ रही है. इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी कि एनर्जी बैलेंस नहीं है. अभी बैक फ्लावर थेरेपी क्या करेगी? आप जब इनको लेंगे आपकी एनर्जी को बैलेंस करेगी. What are the common emotional patterns you see in people these days, and does Bach flower therapy help heal deep emotional trauma also? मतलब सिचुएशन के हिसाब से सबका वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग इज डिफरेंट बाय बिकॉज आवर इमोशंस आर डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. तो दैट इज व्हाई ऑल टाइप ऑफ इमोशंस आई कैन सी इन डिफरेंट पीपल. देयर आर फ्यू ट्रॉमास जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, लाइक मे बी समबडीज डेथ, डिवोर्स, ठीक है, ब्रेकअप इन योर रिलेशनशिप और समथिंग. बट देन इट इज सेड कि इवन हर्टफुल वर्ड्स आर ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अ पर्सन. वो कहीं ना कहीं आपके अंदर रहते हैं. एंड डीपर इट गोज व्हेन अ चाइल्ड हु सीज हिज पेरेंट्स फाइटिंग विद ईच अदर, दैट इज ट्रॉमेटाइजिंग फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो. when we talk of Bach flower, we have a very good remedy called Star of Bethlehem, which when taken, it
brings us out from all the trauma, starting from your childhood to whatever you have been through. तो बैच फ्लावर थेरेपी क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से या बाकी के जो हीलिंग सिस्टम्स हैं, प्राणिक हीलिंग है या एक्यूप्रेशर है, क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं किसी और थेरेपी के साथ? ऑफ कोर्स यस। जो एलोपैथिक है अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट ऑफ नॉलेज, एज पर माय बेस्ट ऑफ नॉलेज, इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन द डिजीज. What the alternate remedies is doing? Somebody is working on the mental body, somebody is working on the back flower, emotional. Now we have three bodies as what we discussed: physical, mental, and emotion. Back flower therapy, how it works on everywhere. Now how the back is working is when we take 4 drops within, means अपने टंग पे लो, अपने saliva से mix करो. This is going in the micro ब्लड सेल्स. ब्लड सेल्स में जाके क्या कर रहा है, वो सातों चक्रास पे भी काम कर रहा है, आपके मेरिडियन पे भी काम कर रहा है. देन व्हाट इज हैपनिंग, आपकी बॉडी में पेन है या आपको कोई भी डिजीज है, इंक्लूडिंग द लिवर सिरोसिस भी है, कैसे काम कर रहा है? स्टेग्नेशन है बॉडी में, कुछ तो स्टेग्नेशन है, स्वेलिंग है, कुछ तो स्टेग्नेशन है, दर्द है तो स्टेग्नेशन है, यहाँ हो या कहीं भी हो बॉडी के पार्ट में. तो ब्लड सेल्स, ब्लड फ्लो की एक्टिविटी को बैलेंस कर रहा है. अभी क्या क्या बैक फ्लावर थेरेपी ने किया, जिस भी पर्पस के दिया गया, हर थेरेपी के हर बैक के पीछे उसका चक्रास इन्वॉल्व है. उसने उस चक्रा का अगर एक्टिविटी को बढ़ा दिया या बैलेंस कर दिया, मीन्स अगर डिप्लीटेड है तो बैलेंस किया, अगर बढ़ा हुआ है तो भी बैलेंस किया. ऐसे ही मेरिडियन को बैलेंस किया, ब्लड फ्लो ठीक हुआ, स्टेग्नेशन खत्म होगी. वंस मोर यू आर परफेक्ट इन योर वेल बीइंग. After 24 दीपिका days. जी, कैन यू एलैबोरेट हाउ डज इट वर्क? लाइक अगर किसी को बैच फ्लावर थेरेपी एक्सपीरियंस करना हो तो कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, और क्या रहता है इसका? It's like a consultation session that we take in which we talk to a person for around 35 to 40 minutes, जिसके अंदर पूरा आपसे बात करके what is it that is stressing you in the present, ठीक है, and then along with that a little bit about your previous history and all those things are taken into account. उसके हिसाब से we decide all those remedies or all those emotions that are most affected. हमारी बॉडी को सेल्फ हील करना आता है. द ओनली थिंग इज कि हम ये नेगेटिव इमोशंस की वजह से उस हीलिंग को होने से रोक रहे हैं. जैसे ही वो नेगेटिव इमोशंस बैलेंस होंगे, ये हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी. तो हम बेसिकली जब ये इमोशंस को ठीक करते हैं तो इट्स नॉट समथिंग एक्सटर्नली वी आर डूइंग. बॉडी को याद आ जाता है अपना वो इंटरनल सिस्टम. इट्स लाइक रिमूविंग ऑल दैट डस्ट एंड लेयर्स अबव दैट एंड द बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग. सो इन द थेरेपी सेशन व्हेन वी असेस कि कौन कौन से इमोशंस के हिसाब से रेमेडी कंबाइन करके देनी है. निकुंज जी, हाउ कैन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक मॉर्पेन integrate batch flower therapy for its employees, and do you have any scientific backing or real life success in corporate settings? कंफ्यूजन एंड डिसीजन के बीच का जो गैप है, वो बैक फ्लावर थेरेपी आपको कम करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी. यू विल टेक योर ओन डिसीजंस, एंड डिसीजन जब हम टाइम से पहले लेंगे तो डेडलाइन भी नहीं होगी, देन प्रोग्रेस तो पक्का होगी. वी ऑल आर हियर टू गेन समथिंग. अभी गेन के भी 2 रूप हैं. ग्लो, हाउ यू वांटेड टू ग्लो, इट डिपेंड्स. नाउ व्हेन वी विल टेक अ राइट डिसीजन, फॉर श्योर वी आर गोइंग टू गेन. अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरे को किसी ने पूछा, अच्छा वी विल गेन द मनी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द मनी इज नॉट द मोटिवेशन. द मोटिवेशन, द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज अ मोटिवेशन. कोई भी कंपनी राइज करेगी तो उसके एम्प्लॉय तो पक्का राइज करेंगे. दैट इज फॉर श्योर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. मुझे यही समझ आता है. क्या बैच फ्लावर थेरेपी लीडरशिप को भी सपोर्ट करती है और टीम मैनेजमेंट, जैसे आप यहाँ पे सब लोग टीम्स में काम करते हैं, तो कैसे इनको हेल्प कर सकती है कि ये बहुत बेहतर तरीके से अपनी टीम्स में काम कर सकें और लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर की और अच्छे से उभार सकें, निकाल सकें? So leadership quality is what? When you can take team along with you. तो जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिस भी आप पोजीशन में है, आपके नीचे 4-5 जने तो हैं ही हैं. उसको बैलेंस कैसे करना है? अभी जैसे दीपिका जी ने कहा माई वे और हाईवे, आप उसको फोकस करके उसको अपनी चलाना चाह रहे हो या उसकी नॉलेज को लेना चाह रहे हो? When you discuss with the other people, what do you say about this? Maybe you will get a better answers. But when we say you have to do this, then the matter is close. Now it's up to you how you take this. Now what back is doing here is, when you take such kind of the remedies, like you go to the old scenarios,
जिन लोगों को कभी ये था कि मेरी सुनो, तो एक दिन ऐसा आता है कि उसकी सुननी बंद होती है। ये तो ऑब्वियस है। आज मैं 63 का हूं, तो मैं 20 साल वाली एनर्जी तो नहीं रह सकती ना। अभी जब मेरी सुननी बंद होगी, तो कितने लोगों का अनुभव है कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं टिक 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 हो रहा है स्ट्रोक, एंड दैट इज हाउ द स्ट्रोक्स कम। जब बैलेंस लीडरशिप होगा तो वो आपका एक पॉजिटिव वर्च्यू है। यूज दैट वर्च्यू फॉर योर बिजनेस। अगेन मुझे यही समझ आता है, ग्रोथ पक्का है। लगता नहीं क्या आप लोगों को सबको कि पक्का ग्रोथ होगी? वी ऑल नो कि अगर सर दर्द हो रहा है तो डिस्प्रिन लेनी है, बुखार हो रहा है तो क्रोसिन लेनी है, बट डर लग रहा है तो क्या लेना है, या डिसीजन लेना है तो क्या लेना है। तो यहाँ पे प्लीज़ बाज फ्लावर ले सकते हो, मतलब बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहे हैं। मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मेरे को कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, ऑल सच इमोशंस वी कैन टेक रेमेडीज अकॉर्डिंगली। बिल्कुल ठीक कहा दीपिका जी आपने कि हर चीज़ के लिए गोली नहीं है। जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए तो हमें पता नहीं है, ना हमें स्कूल में सिखाया जाता है और ना घर पे कि उसके लिए कौन सी गोली है। ना हमें, अगर हमें डर लग रहा है तो उस डर को कैसे जीतना है, उससे बाहर कैसे आना है, उसके लिए भी कोई गोली नहीं है। तो ऐसी सब जगहों पे जहाँ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, जहाँ आपको अपने डर से बाहर आना है, अपनी जो आपकी वीकनेसेस हैं, हर एक किसी की कोई ना कोई वीकनेस रहती है, तो हमें समझ ही नहीं आता है, हम सर से दीवार फोड़ें कि हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। हर कोई भी थेरेपी नहीं करवाता है, हर कोई भी थेरेपी तक पहुंचता नहीं है। तो वहाँ ये बहुत ही सुंदर जो बैच फ्लावर रेमेडीज़ हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, और आप देखेंगे आपके भीतर चेंज लाती हैं। हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे इस कॉर्पोरेट सेटअप में भी आपको हर तरफ से, आपकी कंसंट्रेशन में, आपके फोकस में, या आप कोई भी सेटअप में अपनी कोई रिव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर चीज़ में ये जो इमोशंस, जहाँ पे भी इमोशन शब्द आ जाएगा, वहाँ पे बैच फ्लावर थेरेपी आपको हेल्प करेगा। डॉक्टर बैक की जो थ्योरी है वो आप किसी भी दूसरे अल्टरनेट रेमेडी या एलोपैथिक के साथ यूज कर सकते हो। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उन दोनों के बीच में भी। आप एलोपैथिक भी खाएं, डॉक्टर बैक फ्लावर थेरेपी से भी अपने इमोशंस को बैलेंस करें, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग योर इमोशंस। तो इमोशंस ही मेरे को तो समझ आते हैं, उसको बैलेंस करोगे तो यू आर गोइंग टू अचीव व्हाट यू वांट एक्चुअली। एक नाखुश इंसान कितने लोगों की ज़िंदगी में दुख प्रकट करता है, और एक खुश इंसान 100,000 लोगों की ज़िंदगी में खुशी फैलाता है। सो I'll like to wind up over here and thank our guests. Thank you so much, audience. Without you, this wouldn't have happened. So thank you, all of you.